Hello student, today my topic is chapter area of the bounded figure. Now one part is given area region bounded by the x-axis and line x is equal to a and x is equal to b, यानी ये कर्व दिया हुआ है y is equal to एफ एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर a एंड b 2 पॉइंट ये एक लाइन है यहाँ पर दिस इज a and b, two lines are given here, x is equal to a and x is equal to b. Then you have to find out the area of the shaded part. This part is shaded part, then is equal to a to b. A is a lower limit, b is upper limit, fx dx. यानी you will apply the formula area is equal to a to b y dx. Second part पे आते हैं. Second is given here के area of region bounded by the y-axis, यानी y-axis is given and the line y is equal to a and y is equal to b. These two lines are given here, y is equal to a and y is equal to b, and the curve is given x is equal to fy, यानी curve is given on the y-axis. तो a to b fy and dy is equal to limit a to b and x dy, and with the help of the curve you will find the value of x and you will in the form of in term of y, then you will write a to b x dy. And third portion is given, this one area between the two curve. If the two curve are given, y is equal to fx and y is equal to phi x, and two ordinates drawn at the point like this. One curve is given upper side, second curve is given lower side, and y is equal to fx, the first curve, second one y is equal to phi x. And this part we are taking this part, this is the shaded part. It means area of the shaded region is equal to a to b fx minus a to b phi dx. Now your first question is given, find the area of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. It means you will find the area of the full part. Or firstly we are taking only the first quadrant because this total part is dividing by the 4 quadrant. Now see 1 2 3 and 4, लेकिन हम सिर्फ एक पार्ट लेंगे और लास्ट मोमेंट में जब एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फाइंड करेंगे तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ जो हम लिमिट, क्योंकि यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है ये है और माइनर ये वाली एक्सिस है, तो यहाँ पर a टू b 0 to a जो हमने लिमिट कंसीडर कर ली है, यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 0 और ये a जो है ये मेजर एक्सिस का पॉइंट है फर्स्ट. अब यहाँ पर हमें लिखना क्या है कि y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन a square. Now here you will take the LCM. After taking the LCM, then you are getting y square upon b square is equal to this one. Now y square is equal to b square, do the cross multiplication, b square upon a square and a square minus x square. Find y is equal to, this is b upon a under root a square minus x square. This square root is not given here because we will find here y square b square upon a square, that square root is not given. Now square root is given here, y is equal to b upon a square minus x square. Then we have to take the area. Now write the area is equal to 4. वन पार्ट देखिए यहाँ पर ये है एरिया, हमें पूरे पार्ट का फाइंड करना है लेकिन हम 1 को लेकर चलेंगे. तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, यानी 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट हमने ले ली 0 to a. इस तरीके से 0 to a लिमिट हो गई. देन योर फार्मूला y dx
This implies you will write 4 and put the value of y, limit 0 to a, and y is given b upon a under root a square minus x square and dx. Now is equal to 4 you will write same, and b upon a you are taking outside, then this will be 0 to a and a square minus x square and dx. Here you will apply the formula. This is 4b upon a, and this formula is given. Now you will start the bracket and your formula x upon a, you will apply here x upon 2 and a square minus x square under root, then plus a square upon 2 sine inverse x upon a. Now we have to apply here formula, and limit is given 0 to a. दिस इज द लिमिट. हम लोगों ने यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लिया है. x अपॉन 2 ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a. देन अप्लाइंग द लिमिट. अब आप लोगों को सिर्फ लिमिट अप्लाई करना है, और ये हमने लिख दिया 4b अपॉन a, यू विल राइट सेम. देन अप्लाइंग द अपर लिमिट. जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें देखना ये है कि ये ए अपॉन, यहाँ पर हमने रख दिया कि ये a अपॉन 2, फिर अंडर रूट लगाइएगा और ये a स्क्वायर माइनस, देन इट इज़ x के प्लेस पे आप a रखेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x की जगह a अपॉन a. नाउ वी हैव टू क्लोज इन द ब्रैकेट लाइक दिस, फिर माइनस लगा दीजिएगा. और अब आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट यहाँ देखिए 0 है, ये 0 रखेंगे तो ये 0 पूरा हो जाएगा. फिर यहाँ पर अगर ये x के प्लेस पे आप 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 अपॉन 0 और साइन इनवर्स 0 0 ही रहेगा, तो ये भी पूरा आपका 0 मिलेगा. तो इसलिए पूरा का पूरा हमने यहाँ पर 0 कर दिया. इसके बाद आगे है, यहाँ पर हम देखते हैं ये है 4b और अपॉन a इन ब्रैकेट, ये पूरा 0 आ जाएगा. यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहाँ प्लस लिख दीजिएगा a स्क्वायर अपॉन 2. ये रिजल्ट रहेगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 यू नो वेल दैट साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2. इट मीन ये 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 और पाई बाई 2 इज इक्वल टू 4b a स्क्वायर इन डिनोमिनेटर a और पाई अपॉन 4. दिस 4 and 4 cancel out, 1a and 1a cancel out. It mean your result is ab pi. This is the answer. First question you did ab pi. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन कि AOB इज़ अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द इलिप्स. यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात की जा रही है. इट मीन यू विल कंसीडर ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो AOB इज़ अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द इलिप्स, and equation is given x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, in which OA, this part is given OA is equal to A and OB is equal to B. Find the area between the arc. This arc is given, you will find the area between the arc, and this chord is given AB. यानी इन दोनों के बीच का जो ये शेडेड एरिया है, तो हमें सिर्फ वही एरिया फाइंड करना है. उस एरिया को हम फाइंड करने के लिए अगर पूरे क्वाड्रेंट में से
इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा। अब इसके लिए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ इक्वेशन इज गिवन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर is equal to 1. Then again we have to write area of shaded part, area of shaded part is equal to area of OACB, यानी ये पूरा पार्ट रहेगा, यू आर टेकिंग द पार्ट OACB, फिर माइनस लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये रहेगा OAB। ये आपको करना है, यानी पूरे इस क्वाड्रेंट में से आपको ये एरिया जो है आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे इसका एरिया जो हम फाइंड करेंगे इज़ इक्वल टू, इक्वेशन हम लिख देते हैं। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो लिखा था कि y, यहाँ लिमिट हमारी रहेगी 0 to a और ये रहेगा y dx, ये हम अप्लाई करेंगे, इज़ इक्वल टू, पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर भी फाइंड किया था। देखिए इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 0 to a, ये रहेगा। और y की वहीं से जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो थी b अपान a एंड अंडर रूट, ये था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ माइनस लगाइएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यानी 1/2 इंटू बेस ओ ए मल्टीप्लाइंग बाई परपेंडिकुलर ओ बी। और इस वाले पार्ट का जो हम लोगों ने एरिया फाइंड किया था पहले वाले क्वेश्चन में, जो हमने एरिया फाइंड किया था वो था 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं, 1/4 और ये रहेगा पाई ए बी माइनस 1/2 और ये a और ये b। इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ पर एलसीएम हम ले रहे हैं तो ये हमें मिलेगा 4, ये पाई ए बी रहेगा यहाँ, देन माइनस ये रहेगा 2ab एंड दिस कैन बी रिटन 1/4 ab, यू आर टेकिंग एलसीएम, एंड पाई माइनस 2 और इसका यूनिट भी लिख दिया करें, स्क्वायर यूनिट ऐसे करके लिख दिया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्ड दिया हुआ था, देखिए पूरी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स है और यहाँ पर एक जो है कार्ड है और एक आर्क है, इसका एरिया हमें फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन हमारा है एरिया लाइंग इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड द सर्कल, बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू √3y। देखिए ये हमने सर्कल बना लिया है। अगर हम सर्कल की बात करें कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ हम सबसे पहले सेंटर तलाश करेंगे, देन सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज गिवन, radius r is equal to 2, यानी you will compare from this equation x square plus y square is equal to r square। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन एंड सेंटर 0, 0 एंड रेडियस इज गिवन r और एक लाइन दी हुई है। सबसे पहले ये देखिए कि लाइन जो है वो x इज इक्वल टू √3y है, तो इट मीन अगर x के प्लेस पे 0 रख दें, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन x इज इक्वल टू √3y। यहाँ पर क्या करना है, हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो 0, 0 से पास हो रही है या नहीं। देन यू विल पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, एवरीथिंग इज 0, देन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
तो यहाँ x के प्लेस पे 0 रखोगे, y के प्लेस पे 0 रखोगे, 0 0 आ जाएगा। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी ये लाइन जो है वो सर्किल को किस जगह पे कट करेगी। तो इसके लिए हम पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ x की वैल्यू रख दीजिएगा, यानी √3y, और दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3y स्क्वायर, फिर ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और दिस इम्प्लाइज 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। इट मीन y इज इक्वल टू ±1। ये जो है हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ x इज़ गिवन √3y। अब देखिए मैंने जो रिज़ल्ट लिया है y का वो प्लस और माइनस है, लेकिन हम बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की करते हैं। यहाँ पर दिया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, यानी यू विल फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन माइनस यू विल नेगलेक्ट, देन यू विल राइट हियर x इज इक्वल टू √3 इंटू 1 इज़ इक्वल टू √3। तो मीन्स जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो रहेगा √3 और ये कॉमा 1। यहाँ पर हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। अगर हम डायग्राम की तरफ चलते हैं, चलिए देख लेते हैं, फिगर को हम देखते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर √3, 1 ये रहेगा, और ये वाला पॉइंट है लिमिट, यानी ये यहाँ तक 2 दिया हुआ, क्योंकि ये रेडियस है, हमने 2 रेडियस लेने के बाद ही सर्कल ड्रा किया है। और आपको ये पूरा एरिया, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक एरिया हमें पूरा का पूरा फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने पहले इस चीज़ को लिख लिया है कि कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। अब आगे इसको इंटीग्रेशन ले रहे हैं। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द रीजन पार्ट, या लिखिएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू, यहाँ हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लाइन, क्योंकि लाइन को यहाँ टच कर रहा है तो हमें वो वाला पार्ट लेना है लाइन वाला, क्योंकि यहाँ पर आके लाइन जो है ख़त्म हो जाती है। देखिए तो हमने यहाँ लिख दिया 0 to √3, यानी ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है √3 है। तो 0 to √3, और यहाँ पर जो y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा x/√3, और यहाँ लगाइएगा dx, फिर प्लस लगा दीजिएगा। और अब दूसरी लिमिट हम चलेंगे, √3 से लेके 2 तक रहेगा, √3 to 2, और यहाँ से इक्वेशन दी हुई है, देखिए वहाँ से हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - x स्क्वायर √ और ये dx ऐसे रहेगा, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज़ गिवन। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, या y इज़ इक्वल टू √4 - का x स्क्वायर। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन बना ली हैं। अब इसका इंटीग्रेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो 1/√3 यू हैव टू टेक आउटसाइड, और इस x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रहेगा x²/2। इट मीन द इंटीग्रेशन ऑफ x²/2 लिमिट 0 to √3, फिर प्लस लगाइएगा यहाँ पर। अब ये आगे इसका इसमें फार्मूला लगा देते हैं हम। यहाँ पर आ जाएगा x/2 4 - x स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। फिर प्लस रहेगा यहाँ पर प्लस a²/2, यानी 4/2, और साइन इनवर्स x/a, यानी x तो हम ये लिखेंगे, और a की वैल्यू यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। और इस तरीके से आप
यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे और ये लिमिट रहेगी √3 to 2। ये इस तरीके से आगे कैलकुलेशन है हमारा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इज़ इक्वल टू 2 मैं बाहर ले रहा हूँ तो 1/2 √3 इन ब्रैकेट आप यहाँ लिखिएगा √3 स्क्वायर माइनस फिर 0 स्क्वायर लिख दीजिए लाइक दिस प्लस। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। अगर हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और देखिए यहाँ पर हमने 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 रहेगा, 4 - 4 यानी ये वाला पार्ट पहला 0 हो जाएगा, प्लस लगा दीजिएगा। यहाँ 2 रहेगा 2 to the 4। अब आप लिख दीजिएगा साइन इनवर्स 2 और अपान 2, फिर माइनस लगाइएगा। अब लोअर लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसके प्लेस पे रखेंगे √3 ये रहेगा और ये 2, फिर अंडर रूट लगाइएगा, यहाँ पर 4 लगाइएगा, 4 और माइनस यहाँ कितना रहेगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ये, फिर प्लस ये आ जाएगा 4 यानी 2 मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली 4/2 और साइन इनवर्स रहेगा यहाँ पर और ये आ जाएगा √3/2। इस तरीके से हमने लोअर लिमिट भी यूज़ कर ली। इज़ इक्वल टू यहाँ 3 आ जाएगा यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3/2 √3 लाइक दिस, फिर प्लस लगाइए यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 = π/2 ये रहेगा। फिर माइनस यहाँ लगाइएगा, ये √3/2 खाली बच रहेगा, यहाँ से √3/2 फिर यहाँ लगाइए, फिर ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, ये आ जाएगा 2 और ये जो वैल्यू साइन इनवर्स √3/2 यानी ये साइन 60 की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2π/3, ये ऐसे आ जाएगा। ये हमारा ये वाला रिज़ल्ट, इसको अगर हम कैंसिल करें तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, √3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये पाई माइनस √3/2 माइनस फिर रहेगा 2π/3 और ये √3/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ जो रिज़ल्ट रहेगा उसको दिस इम्प्लाइज आप लिखिएगा पाई -2π/3 इज़ इक्वल टू 3π - 2 यानी π/3 और ये आंसर हो जाएगा, लिखिएगा स्क्वायर यूनिट। ये आंसर रहा आपका। इस तरीके से हमने ये पूरा कैलकुलेशन किया है। देखिए इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और आज का टॉपिक मेरा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट जो ये कल या परसों में मैं डालूँगा, इसके आगे इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे डालना है ताकि आप लोगों का इजीली रिवीजन हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़, जो भी न्यू लोग हैं जो इसको देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।